Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. We have ended chapter 3, which is land and environment, और आज हम उसके questions discuss करेंगे. चलिए, let's start. Okay, so we are starting with the question and answers of chapter 3, which is land and environment. The first part is multiple choice questions. Multiple choice questions, जैसा कि आप जानते हैं, एक question में आपको 4 options दी होंगी और आप उन्हें उसमें से जो best fit answer है वो pick up करना है. So the first question is, in summer season, the average temperature of plain areas of Pakistan is? Summer season में पाकिस्तान के plain areas का average temperature क्या होता है? There are 4 options. A. 20 degrees Celsius, B. 30 degrees Celsius, C. 40 degrees Celsius, and D. 50 degrees Celsius. If you recall, the plain areas are the areas which are near River Indus, obviously Punjab and Sindh area. अब ये वो areas हैं जहाँ पे summers are very hot, excellent. So if the summers are hot, then the average temperature is 40 degrees Celsius. Now, the second question is, the total area of Pakistan is, पाकिस्तान का कुल रकबा, there are 4 options, 6,70,570 square kilometer, 7,96,096 square kilometer, 7,55,096 square kilometers और 79,065 square kilometers. So पाकिस्तान का जो area है, we have discussed this earlier as well, is this. Now, the third question is, K2 mountain is located in K2, the second highest peak in the world. ये किस mountain range में पाकिस्तान में है? There are 4 options. Himalayas, Karakoram, Koh Safed and Hindu Kush. K2 is in Karakoram. If you recall, तो Koh Safed western mountains है, Hindu Kush is northwestern mountain, and Himalayas are shared between Pakistan and India. Karakoram is somewhat shared between China and Pakistan. So, K2 is in Karakoram range. Fourth question. Out of the total area for the development of any country, the percentage of area for forestation should be. जो total area development के लिए allocated है, उसमें से कितना फीसद हिस्सा is allocated for forestation, कि उसमें trees लगाए जाएं, forest बनाए जाएं. There are 4 options, 15%, 35%, 25% and 45%. If you recall, तो पाकिस्तान में ये area is less than 5%, but however, allocation के हिसाब से 25% area is allocated. This is by rule कि जहाँ भी जिस area में भी development हो रही है, बेशक वो कोई country है या city है, 25% of the total area should be allocated for forestation. Fifth question is, the height of Nanga Parbat is? Nanga Parbat is the highest peak in Himalayas. अब हिमालय माउंटेन जो एक रेंज है, उस रेंज की अपनी सबसे हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत. नांगा पर्वत की हाइट इज, देयर आर 4 ऑप्शंस, 7,690 मीटर्स, 8,126 मीटर्स, 8,792 मीटर्स and 6,790 meters. So the correct answer is 8,126 meters. The sixth question is, Karachi is the largest city of Pakistan. It is famous for. कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वो किस चीज के लिए मशहूर है? सबसे बड़ा शहर है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन इज मोर देन 1.5 मिलियन. अब वो फेमस किस लिए? कराची इज द ट्रेड हब. सो देयर आर 4 ऑप्शंस, A एग्रीकल्चर, B इंडस्ट्री, C माइनिंग एंड D रेयरिंग. सो ऑब्वियसली अगर कराची एक ट्रेड सेंटर है तो इट इज फेमस फॉर इंडस्ट्री. Now, the second part of the questions, fill in the blanks. The first one is, Pakistan has dash in the north. अगर आप पाकिस्तान के मैप को कंसिडर करें तो नॉर्थ में आपको क्या नजर आता है? जो हमने माउंटेन रीजन्स डिस्कस किए थे, they are in the north of Pakistan. So Pakistan has mountains or mountain ranges in the north. Second is, Siachen is a word of dash language which means. Now Siachen is a glacier. पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स में सियाचिन सबसे पहला बड़ा ग्लेशियर है और इट इज मोर देन 70 किलोमीटर्स लॉन्ग. ये
बाल्टी लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब है वाइल्ड रोज. The third one is the river dash is the longest river of Pakistan. पाकिस्तान का सबसे लंबा रिवर. Excellent. Indus. अब इंडस पाकिस्तान में एंटर कहां से करता है? इंडस की हिस्ट्री हमने पढ़ी थी. इंडस स्टार्ट होता है तिब्बत से, विच इज चाइना, और पाकिस्तान में ये एंटर करता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड देन एट एबटाबाद इट एंटर्स इन द प्रोविंस पंजाब आफ्टर क्रॉसिंग दैट. Forests cover only -% of the total area of Pakistan. Forest पाकिस्तान का सिर्फ 5% of the total area cover करते हैं. Smog is a mixture of fog and dash. Smog, the most recent environmental hazard. It is, in fact, इसकी हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी. You remember that इंडिया में कुछ लोगों ने अपनी फसलें जलाई थी. उन फसलों को जलाने के बाद obviously since we share border with India, तो वहां से हवा के साथ ये सारे पोल्यूटेंट्स एयर में आ गए थे और इन्होंने स्पेशली पंजाब प्रोविंस को, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को कवर कर लिया था. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक. ये क्यों इतनी जानलेवा है? बिकॉज इसमें बहुत सारे हैजरस पोल्यूटेंट्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी लंग डिजीजेस कॉज करते हैं. द थर्ड पार्ट इज राइट शॉर्ट आंसर्स. द फर्स्ट वन इज डिफाइन द टर्म लोकेशन. अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पाकिस्तान की लोकेशन डिस्कस की है. लोकेशन क्या होती है? लोकेशन वो जगह है which refers to the position of that country or that object or that place. So the definition would come out to be a location is a place where a particular point or object exists. अब इसके साथ आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो जिसमें आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज वर्ल्ड के ऊपर, वर्ल्ड मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर आप पाकिस्तान की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो, इवन एशिया कॉन्टिनेंट की बता सकते हो. लोकेशन की एग्जाम्पल में जियोग्राफिक लोकेशन के अलावा हम रैंडमली जनरली भी तो बात करते हैं. ओके, दैट बुक इज लाइंग ऑन द बुक शेल्फ, या आई हैव केप्ट माई पेन इन माई बैग. सो वी आर एक्चुअली टेलिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इवन. द सेकेंड वन इज नेम 4 नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. अब नेचुरल रीजन्स आप मेरे साथ करेंगे, जल्दी से बताइए. यस, प्लेन्स. प्लेन्स वो एरियाज हैं जहां पे यू फाइंड दिस इज द नियर बाय लैंड टू अ रिवर. एक रिवर के साथ अपर इंडस प्लेन्स, लोअर इंडस प्लेन्स. देन माउंटेन्स. नॉर्दर्न माउंटेन्स आर ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजन्स. फिर हम बात करते हैं सहरा की, डेजर्ट्स. एंड एट द लास्ट कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन क्या होता है? कोस्टल रीजन इज द रीजन विच इज नियर बाइंग अ सी. जैसे पाकिस्तान में द कराची साइड इज द कोस्टल रीजन, और अगर हम वेस्ट की साइड पे मूव करें फ्रॉम द साउथ तो वो भी कोस्टल रीजन में आता है क्योंकि इट इज बॉर्डरिंग द अरेबियन सी. द थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी ये दोनों इश्यूज हैं एसोसिएटेड विद सॉइल. वाटर लॉगिंग रिफर्स टू ओवर सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर. वाटर लॉगिंग रेफर करती है कि जो मिट्टी है उसमें पानी का लेवल बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाए. इट डिक्रीजेस द ऑक्सीजन अवेलेबल टू रूट्स. उसका इफेक्ट ये होता है कि प्लांट्स जो वहां ग्रो करने हैं या करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती. तो ऑलरेडी जो ग्रो किए हुए हैं, अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना किया जाए तो वो वहां पे दे डाई, और अगर देयर आर नो प्लांट्स तो वहां पे आप कुछ उगा भी नहीं सकते. द अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू सर्फेस एंड एक्यूमुलेट्स. रिमेंबर हमने पिछले लेक्चर में वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी डिस्कस की हुई है. इफ नॉट देन यू कैन रेफर बैक एंड गो एंड सी हाउ वी हैव डिस्कस्ड बोथ द इश्यूज. सैलिनिटी. सैलिनिटी को अगर हम वर्ड वाइज देखें तो सैलिनिटी इज द सॉल्ट कंटेंट इन सॉइल एंड इट बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम व्हेन इट्स कंसंट्रेशन राइजेस टू अ डेंजरस लेवल. अब इसमें वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी कुछ एरियाज में दे गो हैंड इन हैंड. वो कैसे? जब अंडरग्राउंड वाटर का लेवल, याद कीजिए, 5.1 मीटर से ऊपर बढ़ जाता है तो वो वाटर अंडरग्राउंड सरफेस पे आ जाता है. अगर उस एरिया में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो वाटर जब ऊपर आता है तो अपने साथ सॉल्ट को भी ले आता है. सो एक तो नेचुरल सॉल्ट जो सॉइल में प्रेजेंट था, अब जब ये अंडरग्राउंड सॉइल भी आ गया तो इट वुड ऐड टू द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉइल. सो सलाइन सॉइल्स हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. इनको ट्रीट करने के लिए हम ग्रास यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. The fourth is indicate any 2 benefits of forests.
आप कोई भी लिख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है कि फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट, फॉरेस्ट ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। फॉरेस्ट जो है वो इफ़ यू टॉक अबाउट टॉप सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट जो है वो रेन वाटर या फ्लड का जो फ्लो है और जो स्पीड है उसको भी रोकते हैं। सो येस, यू कैन लिस्ट एनी टू ऑफ दीज। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।